सोसाइटीज़ फिर से उठती हैं तो उसमें बहुत सख्त ज़रूरत इसकी होती है कि लोग अपना तन मन धन डालें और कुछ उसमें से ऐसी चीज़ निकालें कि जिससे वाकई में एक सोसाइटी में जान बने और जहाँ पे हम देखें कि ग्रोथ और एवोल्यूशन जो है वो आगे कैसे चलती है। जहाँ पे आज बैठे हैं संजय नगर, जो कि जिसका सारा काम और जिसकी सारी सोच यही है कि एक कहते हैं कि संजय नगर का मतलब ही ट्रूथ सीकिंग है। तो अक्सर रज़ा कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि जब कोई चीज़ बदलनी होती है तो वो सोसाइटी ही उसका काम करती है। आज इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो इन सब कामों से जुड़े हुए हैं। मैं जिधर नज़र उठाती हूँ वही लोग हैं जो कि सोसाइटी की रीबर्थ का काम कर रहे हैं, और काम करना ही लोगों को चाहिए, ये सरकार का काम नहीं होता। तो it is such a pleasure that here two institutions have collaborated for doing something very unusual, and it could be the beginning of a very important journey that we see that each year that we have this Sammelan as a part of Lahore. Just as we've seen the Chandigarh Sangeet Sammelan as part of Chandigarh for the past 37 years. I do want to share with you the Indian National Theatre and the Chandigarh Sangeet Sammelan's history, that the Indian National Theatre has been working in Chandigarh since 1965 under the leadership, it was originated under the leadership of Miss Shri Dunga ji. And in that, there were amazing personalities that were part of that. Mrs. Kanta Sarup Krishan, Mrs. Usha Sabu, Mrs. Jiti Sodhi, Mr. P.N. Thapar, Mr. H.C. Khanna, and how the society has been working to combine music and education, because I think that's the essence of it. I think we are truly believers that learning takes place as a multi-sensory experience. But sadly, that's now how it is formally interpreted in the ways our schools and universities run. And the society, the Indian National Theatre and the Chandigarh Sangeet Sammelan have been presenting not only the annual 3-day concerts, but also running workshops and sessions so that there are music appreciation courses that are held from time to time for music lovers and young people so they can understand music. It has also been very exciting to see that Mr. Khosla Saab, who has been serving as the head of the society for the past 35 years, and also Mrs. Sarup Krishan, who gives the guidance to this to the society, that for the past 37 years they've been hosting this Sammelan. And by the time one finishes, they're ready for the next one, which is always hosted in the month of October. And I think Khosla Saab starts inviting us at least 4 months before, get ready with your visas, time to come, and so on. But Khosla Saab himself, and I think, many bureaucrats are sitting there, so there's life after bureaucracy. And of course, if he is the epitome of that, I think then there's hope for many a bureaucrat in Pakistan to save their souls. And Khosla Saab has, he has always, his heart has always been in music and the arts. He comes from Patiala, and when his sisters were learning the Israj and vocal music, he was also there, harboring this wish that he'd be able to serve music one day. And that wish did come true. So he also studied under Pandit Somraj, who had been at the Vidyala of the great Krishna Rao Shankar Pandit of Gwalior for 17 years. Khosla Saab joined the All India Radio as a program assistant at Delhi station, and in all of that, when he got into the Indian Administrative Service, and after 40 years of working there, in 1975 he was inducted into the Indian National Theatre, and he decided to start the Chandigarh Sangeet Sammelan, in itself a huge milestone and a landmark for Chandigarh and for India and now for Pakistan. A big round of applause, please. The Sammelan has hosted celebrities like Pandit Bhim Sen Joshi, Vilayat Hussain Khan Sahab, Kishori Amonkar,
Kumar Gandharv, Parveen Sultana, Pandit Jasraj, to name a few. And of course, his passion is always to have people come out and also from Pakistan and be there. And it was on one of those occasions when the Chanjanagar Institute of Philosophy and Arts was invited to Chandigarh that we all went there. And I don't know, at that time we didn't think about that this may happen, but I'm so glad that this has happened. And actually, I had a little bit of a role to play in it, that when I was visiting Chandigarh on Raza's, one of Raza's duties to attend the marriage of a grandchild of a fellow lawyer in Chandigarh, I told Khosla Sahab that it's not possible that आप एक दफ़ा भी लाहौर ना आएं. तो he said अगर मैं आऊँगा तो फिर मेरे साथ तो फिर सारे संगीत वाले आएंगे, फिर ये भी आएंगे और वो भी आएंगे. तो हम लोगों ने कहा कि ये तो हो नहीं सकता कि खोसला साहब कुछ कहें और हम उनको ये डिनाई करें. तो it's such an honor that we have here with us Khosla Sahab and his entire team for this 3-day Sammelan. And Sanjay Nagar Institute of Philosophy and Arts, as I said, that, you know, Raza always does very complex things. And that is in his nature. And that's the, so Sanjay Nagar also is involved with, as I said, this whole business of rebirth of society. And with all its various facets, and I think nobody could have been a bigger experimenter than Raza. So having done many things, he decided that this is going to be the hardest route to follow. So no classes, no nothing, only research and development work. Serious work. People who are willing to give their decades without questioning what's in for them. So it's about something that will go on to serve civilizations and, as I said, rebirth of a society that Pakistan desperately needs. So many things happen here, from evolutionary mentology to photography to the Bulle sound systems. As I said, that a lot of what you're hearing in these 3 days is really so many facets of the institute. It's sound systems, its mixer, its audio, its mics, and so on and so forth, that it's, you know, it takes a lifetime to even understand them. And also to have that amazing capacity to say, forget the patents, we'll do them later, but let's come up with the product first. And you'll see, and even the Surbahar today is something that has been produced here, and then of course tomorrow you'll be hearing the Sagar Veena and all that goes with it. So it's not about just the music, it's also about the mind. It's also about what happens to the human mind and then the human emotions. And that's the journey that this institute is all about. So that's not where it stopped. And then of course there is another organization, the Sanjay Nagar Public Education Trust, which runs the Sanjay Nagar School, Hima Campus, the first campus. And that also in some ways is testing some of the theories and the ideas of the Sanjay Nagar Institute of Philosophy and Arts. So these are amazing journeys. These are journeys of a lifetime and beyond. And I think it's very important that if we want to see these kind of things flowering in society, in which they must, and they give the reason for us to be and to go on in spite of every adversity, तो उसके लिए तो 2-3 जिंदगियों की तो ज़रूरत है और मानव में 100 साल के काम की ज़रूरत है. तो ये इस तरह की जर्नीज़ है. उम्मीद है कि आप लोग इसमें हमारा साथ देंगे और बहुत सारे लोग इस सफ़र में हमारे साथ इकट्ठे उस मंजिल तक पहुंचेंगे जिसकी शायद अभी हमें पता नहीं है कि वो क्या हो, निशानदही क्या होगी, मगर ज़रूर हमें उसके निशान मिलेंगे. स्पेशली जब इस तरह के हमारे मिलाप होंगे कि उधर चंडीगढ़, इधर लाहौर, वो हमारा चंडीगढ़, ये इनका लाहौर. मैं चाहूँगी कि रज़ा और खोसला साहब आपको फॉर्मली खुशामदीद कहें और देन वील स्टार्ट द इवनिंग. हमें खोसला साहब को बुलाएंगे. खोसला साहब, ये रज़ा की कंस्पिरेसी थी कि हर चीज़ खोसला साहब के हाथ होगी. ये खोसला साहब का, ये चंडीगढ़ और लाहौर के जो आप ही हैं उसके बानी आप हैं.
तो आप ही खुशामदीद कीजिए और फिर रज़ा कहेंगे। रज़ा आ रहे, रज़ा आ जाओ तुम भी। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं आपसे, जो आप खुशामदीद कह दें लोगों को। शुक्रिया। मुख्तसर में ये कहना चाहता हूँ, रज़ा साहब इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिविस्ट। हाँ, इनकी उड़ान, इनकी अप्रोच बहुत वसी है और गहराई में जाते हैं। इनके मुकाबले में मैं कुली हूँ। आई कैरी ए लिटिल प्लेजेंट बर्डन, दैट्स ऑल। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो मिशनरी होते हैं उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट कर लें। हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को म्यूज़िक के माहौल में पकड़ लें। यही करता हूँ मैं, और कुछ नहीं करता। जैसा कि बेला ने बताया, 40 साल सरकारी नौकरी की, उसमें इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जितना मुझे इस काम में मिल रहा है। ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, मेल जोल बढ़ता है, जो कुछ सरकारी नौकरी में नहीं मिल सकते। सरकारी नौकरी में फाइलों के साथ उठक बैठक करनी पड़ती है। तो इसलिए नहीं, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। जब पार्टीशन के बाद, लाहौर पार्टीशन से पहले आर्ट एंड कल्चर का गहवारा था, इसमें कोई शक नहीं है। म्यूज़िक, ख़ास तौर पर म्यूज़िक एंड पोइट्री बहुत था। जो पंजाबी लोग इधर से उधर चले गए, उनको अपने रोज़गार की, नौकरी की, हाउसिंग की, बच्चों की एजुकेशन की फ़िक्र थी, तो कुछ ड्राई जैसा हो गया था एटमॉस्फेयर। कुछ अरसे के बाद, जैसा कि बेला ने बताया, सोसाइटी बन गई और काम करना शुरू कर दिया लोगों ने। कुछ अच्छे स्टाउट हार्टेड लोग थे जिन्होंने कहा नहीं। इंडियन नेशनल थिएटर ने शुरू में उसकी ओपनिंग की पृथ्वीराज कपूर द ग्रेट, फिल्म राज कपूर के फादर, उन्होंने की। उसके बाद में एक मजाक की बात याद आई मुझे भाई, इनॉग्रल के लिए, इतनी ज़ोर से बोलूँगा? नहीं, ठीक है, सुनाई तो दे रहा है यार सबको। वो है, हल्की सी बात है। वो ज़रा वज़नी थे, तो कुर्सियाँ थीं, आर्म चेयर्स नहीं आ सकते थे। कहीं से ढूंढ ढांड के 2 कुर्सियाँ लाई गई बिना आर्म के। आधी एक कुर्सी पे आधे वो बैठे, दूसरी कुर्सी पे आधे कपूर साहब। खैर, उन्होंने इनॉग्रेशन, उस वक्त कुछ ब्रिटिश काउंसिल ने प्ले भेज दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई 2-4 प्ले, लेकिन कोई कंटिन्यूइंग प्रोग्राम नहीं था। यूँ समझिए कि इट वाज एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड। मुझे तो थोड़ी बहुत जो अपने गुरु से पैरों की धूल लगाई सर पे, वो है, और कुछ नहीं है मेरे पल्ले। तो म्यूज़िक की तरफ इसको मोड़ दे दिया, और होते होते ऐसी हिम्मत हुई सब लोगों से मशवरा करने के बाद कि सम्मेलन करना चाहिए। चंडीगढ़ शुड हैव एनुअल सम्मेलन। हमारा इंस्पिरेशन था हरवल्लभ से। हरवल्लभ तो 100-150 साल पुराना सम्मेलन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया, और कोई नामी ग्रामी म्यूज़िशियन उस ज़माने का नहीं जिसने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो डरते डरते अखबार में लिख दिया, मिनी हरवल्लभ करेंगे चंडीगढ़ में। वो क्या था, इसी तरह से करते करते अब उसका नाम रखा चंडीगढ़ संगीत सम्मेलन। कोई संस्कृताइज लंबा चौड़ा नाम नहीं रखा ताकि लोग समझ सके, सिंपल, से व्हाट यू वांट टू से। पंडित कुमार गसर, भीमसेन जोशी, अच्छे अच्छे कलाकार आए, कोई टॉप का कलाकार नहीं जो नहीं आया हमारे पास। उससे ये हुआ कि लोगों में थोड़ा सा मस पैदा हो गया क्लासिकल म्यूज़िक सुनने का, सीखने का। और अब तो ये हालत है कि कॉलेजेस में अच्छे बच्चे सीख रहे हैं और कुछ अच्छे प्रोडक्ट निकल भी रहे हैं। चंडीगढ़ सम्मेलन 1978 में शुरू किया, और काफ़ी उसके चारों तरफ रीजन्स में से, शहरों में से, छोटे लुधियाना, पटियाला, अम्बाला, कुछ हिमाचल से लोग आते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं,
और मेंबरशिप काफ़ी बढ़ चुकी है। हमारी एक्सपेंस रेशो कुछ नहीं है, वी हैव नो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, समटाइम्स वी हैव टू स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल टू कीप थिंग्स मूविंग। एक हमारा कोशिश ये रहती है हमारी कि जो टॉप के आर्टिस्ट जो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं उनको हम दूर से सलाम कर दें। वी कांट अफोर्ड देम, सीधी बात। लेकिन ऐसे ऐसे यंग आर्टिस्ट हैं, यंग एंड नॉट सो यंग, who want to promote their art, who want to display their learning rather than ask for big money। तो इसलिए अच्छे अच्छे नए आर्टिस्ट हमने इंट्रोड्यूस किए। लोग कहते हैं अरे पंडित भीमसेन जोशी को बनाइए। भाई भीमसेन जोशी तो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनको तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन तब भी हम हर फंक्शन में एक टॉप आर्टिस्ट रखते हैं और बाकी यंग एंड अपकमिंग आर्टिस्ट हु आर गुड एंड हु डिज़र्व एक्सपोजर इन आर। तो ये काम हम कर रहे हैं। बाकी इस फंक्शन के बारे में तो आई द क्रेडिट गोज़ टू रज़ा साहब। रज़ा साहब से मेरी दोस्ती रज़ा साहब तो जैसे तो कॉम्प्रिहेंसिविस्ट है। उन्होंने कहा यहाँ अच्छा म्यूज़िक लाइए, लोगों में एपिटाइट है अच्छा म्यूज़िक सुनने के लिए। तो मैंने कहा साहब माहौल, कहने का माहौल ठीक है, कौन कहता है। और मैंने भी ये बात अपने सोची कि अखबारों में हमारे जो यहाँ के बारे में निकलता है वो सब नेगेटिव खबरें ही छपती हैं। ये तो कोई नहीं बताता कि वहाँ पे मुशायरे भी हो रहे हैं, फैशन शो भी हो रहे हैं, बच्चों के प्ले भी हो रहे हैं और नॉर्मल लाइफ चल रही है। तो मैंने कुछ आर्टिस्ट को, अपने जो मेरे सीधा आर्टिस्ट थे, उनको कन्विंस करा दिया कि आप चलिए मेरे साथ। तो मेरी बात मानते हैं मेरे बच्चा लोग, तो सब चले आए। तो ये आज ये फंक्शन आपको पेश करेंगे। एक सजेशन बहुत डायरेक्शन से आ रही है कि ये फंक्शन सालाना होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे पास इंडिया में ख़जाना है आर्टिस्ट का, और बढ़िया से बढ़िया आर्टिस्ट। और मेरे मुतालिक ये कहा जाता है अरे कहाँ से इतने अच्छे आर्टिस्ट तुम लेके आते हो। तो मैं मजाक में कहता हूँ हाँ साहब मुझ में ये क़ुव्वत है, मैं कि ज़मीन में से गड़े हीरे निकाल लेता हूँ। तो आर्टिस्ट हमारे पास बहुत है। अगर सालाना जलसा होगा और मुझे इसी दुनिया में रहने का हुक्म मिला तो क्या करेंगे ऐसा। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मुझे यकीन है अब आप लोग और कोई बात सुनना नहीं चाहते मुझसे। सिर्फ मेरी खुशी आप लोगों को देख करके, और आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत, और ख़ास तौर पर जो लोग चल करके आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। तो बाकी यार जिंदा सोबत बाकी, आज मेरा जिक्र इतनी मरता आया कि, और बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हुई हैं। तो वो आज मेरे ख्याल में वो मौका नहीं है। फिर कभी अगर आप लोग याद रखिएगा तो मुझे भी कुछ कहना है, जो कुछ खोसला साहब ने मेरे बारे में कहा, और बेला ने तो बहुत कुछ कहा। यकीनन ये इन्होंने बहुत लोगों से सुना होगा मेरे बारे में। तो वो फिर कभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।